Ladies and gentlemen, it is my honor and privilege to present to you two very, very frank people on this show that is called Frankly Speaking. And tonight we are going to speak frankly on issues of the society that should have been addressed decades ago, but finally we are talking about them. Joining me tonight on the show, Yami Gautam. Thank you very much for being in our studios. Haq is a film that is a film about women rights, equality, gender equality based on the landmark Shah Bano case. I'm just dying to talk about it and dying to get your views on it. And joining Yami Gautam is Imran Hashmi. Akka Bollywood ek side mein, Imran Hashmi ek side mein. Intimacy expert and consultant. Oh my God. साक्षात यहाँ हमारे स्टूडियो में serial kisser to intimacy consultant to lawyer now lawyer in Haq on a very, very ticklish issue, Shah Bano case, maintenance, rights of women. Where do I begin with? Imran Hashmi, was this a tough role for you to decide to do before I get into what the role was? No, it wasn't. But I'll tell you, in this film, I had to see it from two lenses. I think there was a two-pronged approach. I see it on an intuitive level. जब भी मैं script पढ़ता हूँ, script अच्छी लगती है, character अच्छा लगता है, it's a given. I had to see this film from another lens, from the lens of a Muslim. क्योंकि let's first put that aside. I think ये film generally आप generalize भी कर सकते हैं. ये किसी भी community और किसी भी generation के लोग इससे connect कर पाएंगे. But I think it was very important because the landmark case at that time in 1985 had two people from this community. तो मुझे सिर्फ देखना था कि the director and the writer उनकी viewpoint क्या है. Is it biased? The answer is no. It was a very neutral, was a very balanced take इस case को लेकर. एक ऐसा take है कि बस एक आईना दिखा रहे हैं हम कि इस तरह ये case इन दो characters के point of view से play out हुआ था और उनकी life जिस तरह थी. And this is the way they were affected by it. And that balanced point of view, I think I felt rest assured कि ठीक है, now I can get in this because I loved the character. I loved her character. I loved the nuance जहाँ पे इनकी love story इनके बीच अनबन होती है. Finally, there's that thrilling courtroom drama in the second half, which is spectacular. So it was a winner on the page for me. And I was like, I have to be part of this film. तो आप तो आगे. Yami Gautam, how is it for you to play the role, the pivotal role inspired by Shah Bano? And Shah Bano case सबको पता है कि एक 62-year-old woman, 5 बच्चों की माँ, उसको डिवोर्स दे दिया गया है और आफ्टर द इद्दत पीरियड उसको कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा. इतना कुछ इसके बारे में लिखा गया है, इतना कुछ पढ़ा गया है. आज की पॉलिटिक्स इस पर इतनी रिवर्बरेट करती है क्योंकि आज भी हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है. कुछ रिलीजन्स में अलग रूल्स हैं, महिलाओं के लिए अलग रूल्स हैं फॉर द मेन. हाउ डिड यू कम अबाउट दिस फिल्म? हाउ डिड यू अग्री टू डू दिस फिल्म? ऑफ कोर्स इट्स अ ड्रीम रोल फॉर any actor. I think the last sentence I think said it all. It is a dream role for any actor. मैंने जब पहली बार उनका नाम पढ़ा था, जिनकी हम बात करें, शाह बानो केस, जब it was making all the headlines and I think उस टाइम स्मार्टफोन्स भी नहीं थे, हम लोग हाई स्कूल में थे और जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं and I still remember that image with her eyes, those haunting eyes. बहुत सिंपल पिक्चर, इट वाज जस्ट अ हेडशॉट, बट उसमें इतनी डेप्थ थी दैट इवन दो आई वाज अ टीनेजर बैक देन, बट आई रिमेंबर आई फेल्ट समथिंग सो डिस्टिंक्ट एंड सो peculiar about that image. And of course and I read about it कि और तो उतनी ही नॉलेज थी जितनी एक आम नागरिक को होती है न्यूज़पेपर पढ़ के. ये कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब मुझे नहीं लगता ये टर्म्स आप इतने यूज थे या ओपनली नहीं थे. तो कितनी हिम्मत चाहिए एक ऐसी औरत को ये करने के लिए. सो ऑल आई हैड टू डू इज वाज काइंड ऑफ जस्ट, हर टेक से पहले चाहे हंसने का ही सीन क्यों ना होता था, मैं ज़रूर आंखें बंद करके वही इमेज जो मैंने देखी थी बचपन में, मैं ज़रूर अपने जहन में लाती थी.
just to remember that who I'm actually representing, not just one woman, but so many of us from different status, अलग religion हो आपका, कोई भी हो, किस भी age की हो, at some level. पर आप एक वुमन की जो वो स्ट्रगल, जो चैलेंज उसका था, एब्सोल्युटली. बट इमरान हाशमी, यू योरसेल्फ आर अ मुस्लिम. डिड इट प्ले ऑन योर माइंड? आपके जहन में ये था कि मुस्लिम कम्युनिटी मुझे कैसे देखेगी अगर मैं ये रोल करूंगा जहां एक औरत जीतती है वो केस? वेल, आई थिंक इस सवाल का जवाब पहले तो मैं ये देना चाहूँगा कि एक लेंस है जिससे मैं इस फिल्म को देखता हूँ, एंड दैट इज़ माई लेंस ऑफ अ लिबरल मुस्लिम, अ सेक्युलर इंडियन. मेरी फैमिली में मेरी शादी एक हिंदू लड़की से हुई 20 साल पहले, परवीन. हमारे घर में एक मंदिर भी है. हमारे बेटे जो हैं पूजा पढ़ते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं. माई मॉम वॉज अ क्रिश्चियन. तो एक मेरी जो माइंडसेट है, इट्स वेरी लिबरल एंड सेक्युलर. तो मेरी लेंस जो मैं इस फिल्म को देख रहा था, आई थिंक इट वाज एक्सट्रीमली न्यूट्रल. और आई एम फर्स्ट फेमिनिस्ट. जिस तरह मैं एक फिल्म, इस तरह की फिल्म जहाँ पे यू नो, व्हाई शुड अ फिल्म ऑलवेज बी अबाउट द हीरोज जर्नी और द रिडेम्पशन और द हीरोज करेज? आई थिंक इवेंचुअली मेल आर्टिस्ट्स शुड ऑल्सो फैसिलिटेट एक ऐसी कहानी, एक ऐसा आर्क जहाँ पे अ वुमन गेट्स अ प्लेस इन द सन. आई थिंक इस, जहाँ तक कि अहमद खान का कैरेक्टर अब्बास खान फिल्म में, मैं कहूँगा कि ये एक ऐसा आदमी है जो अपने खुद के हक के लिए लड़ रहा है. इसकी एक थॉट प्रोसेस है अपनी कम्युनिटी को लेकर, अपने ट्रेडिशन को लेकर, एक परसेप्शन है अपने पर्सनल फेथ का. और विदाउट गेटिंग टू डिटेल इनटू दिस बिकॉज इट कैन गेट मर्की, तो एक कन्वीनियंस भी होती है जहाँ पे आप टिल्ट देते हैं, बिकॉज एक मेल राइटियसनेस भी होती है. in a patriarchal society, we hide behind that tradition and righteousness. ऐसा होता चला आया है, ऐसा होता चला आ रहा था, और इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं. And it is that righteous stand that many men take in our society, and it's not just about one community. एक तरह से आज भी ट्रिपल तलाक बैन होने के बाद भी, और 1985 से लेकर 2019 लगा वापस वो हक देने के लिए, और आज भी लोग कहते हैं कि आप शरिया में इंटरफियर कर रहे हैं, फेथ में इंटरफियर कर रहे हैं. आपको कहीं हेजिटेशन नहीं? देखिए, कोई भी क्रिएटिव प्रोसेस डर का सॉस अगर होगा वहाँ पे, उससे आप यू कांट मूव फ्रॉम दैट. अगर आप एक क्रिएटिव प्रोसेस को न्यूट्रली देखना चाहते हैं एंड इफेक्टिवली एक फिल्म बनाना चाहते हैं, यू कांट बॉदर अबाउट ट्विटर ट्रेंड्स, जो लोग कह रहे हैं. अगर इस फिल्म में लोग थिएटर के बाहर आते हैं, डिबेट्स होती हैं, बहस फिर से शुरू होती है, जो तभी 1985 में हुई थी. आपको ये सोचकर लगता है कि 1985 में शाबानो जीती थी कोर्ट में जी, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या किया था जी, गवर्नमेंट ने एक अलग लॉ लाकर उसके वही फाइट को नील बटे सन्नाटा कर दिया था, और फिर 2019 में ट्रिपल तलाक क्रिमिनलाइज हुआ, बैन हुआ. जी. ये इतनी जद्दोजहद के बाद अगर इतने साल लगे फ्रॉम 1985 टू 2019, आपको लगता है कि ये जो फाइट है इस फिल्म के थ्रू आप लड़ रही हैं कि सारी महिलाओं के लिए, ऑल वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स, विच इज़ द बेसिक मिनिमम जो 21वीं सदी में सबके लिए होना चाहिए, जो हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं? आपको लगता है यू आर पार्ट ऑफ दैट फाइट? डू यू फील आफ्टर दिस फिल्म? एब्सोल्युटली. आई थिंक कहीं ना कहीं जो आपकी कुछ ऐसी फिल्म चॉइसेस होती हैं, ज़रूरी नहीं अगर मैं इसी फिल्म में अगर कोई जैसे बोलते हैं साइको किलर हूँ तो मैं वो उस तरह की कुछ सोच रखती हूँ रियल लाइफ में. इट्स अ कैरेक्टर, राइट? इट्स फिक्शन, इट्स एंटरटेनमेंट एट द एंड ऑफ द डे, सो वट एवर. बट कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो कहीं ना कहीं जो आप एक पर्सनल तौर पर आप बिलीव रखते हैं, निष्पक्ष होकर, निडर होकर, और अगर वो अच्छी स्क्रिप्ट बनती है और मुझे मौका मिले ऐसे सब्जेक्ट्स का हिस्सा बनने का, 2 बार पहले मिल चुका है, तो और ये उससे बहुत अलग है.
एक अलग ही डायमेंशन है और एक ऐसी जद्दोजहद है जैसे आप कह रहे हैं जो बहुत सालों से है। बहुत सही कहा आपने। तो इमरान हाशमी साहब, एक आदमी तय करेगा कि एक औरत कैसे जिएगी, उसके बच्चे कैसे जिएंगे भी कि नहीं जिएंगे, क्योंकि अगर वो वर्किंग नहीं है, उसके 5 बच्चे हैं जैसा इस फिल्म की स्टोरी में है और शाहबानो के केस में है, वो कैसे करेगी? एक मुद्दा है, ये मुद्दा फेथ से डिसाइड होना चाहिए और क्या कॉन्स्टिट्यूशन अलग होना चाहिए? क्योंकि ये रिलीजियस इशू है, ये डिवोर्स के बाद कुछ देना, या एक सिविल मैटर है जो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस होना। पहले तो इसी बात की हमें कहीं ना कहीं रेजोल्यूशन चाहिए। शाहबानो ने इतने साल वो लड़ी हैं ये केस थ्रू ऑल दीज कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. It's a big thing, and that's why she's a testament. She's an example. And it comes down to this thing that people, मर्द इन चीज़ों के पीछे छुपते हैं. एक तो righteousness, a male-driven convenience. Righteousness or convenience? No, righteousness. Hiding behind tradition also is a kind of righteous. Convenience. Is convenience also righteousness? ना कि ये tenets हैं, ये dictates है of what has been happening for generations. और आप इसको क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? इसमें आप दखल कैसे दे सकते हैं? इमरान हाशमी, मैं एक और सवाल भी पूछना चाहूंगी। शाहबानो के ओरिजिनल केस में AIMPLB अब्बास खान के साथ था, यानी कि जो आपका एक हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन पार्टी बन गया था। शाहबानो भी एक मुस्लिम औरत थी, उसके हक के लिए नहीं लेकिन मर्द के हक के लिए खड़ा हो गया था। हम आई डोंट नो हाउ यू फील, पर मैं एक औरत हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात पर सवाल ज़रूर उठता है कि क्यों मर्द का हक और औरत का हक नहीं? इसको कैसे आंसर करें? आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड राइट नाउ. आई थिंक अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो उस वक्त शायद, देखिए अभी पेट्रियार्की तो अभी भी इट्स वेरी प्रेवलेंट इन आवर सोसाइटी. वो तो पूरी सोसाइटी में है, डोमिनेंस होता है और औरत इसमें पिस जाती है. कोई भी सिचुएशन हो, डिवोर्स हो या एनीथिंग. हाँ, इतने सालों के बाद मैंने देखा है, खुद मैं ये देख सकता हूँ खुद की इंडस्ट्री में, टॉकिंग अबाउट विमेन एम्पावरमेंट एंड थिंग्स, हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर विमेन ओवर द ईयर्स. जब मैंने हमारी इंडस्ट्री में मेरी शुरुआत हुई 2003 में, देयर वाज नॉट वन वुमन ऑन अ फिल्म सेट, राइट? अभी इतने सारे महिलाएं आ गई हैं फिल्म सेट पे, उनको काम मिल रहा है. Of course, there are places where there's a compromise. There are situations जहाँ पे उनकी dignity को compromise किया जाता है. It's a better place than it was in probably 40 years ago. So but it's still not that equal. But we are taking steps. We are taking steps. We are taking steps to a better future. I think that's the silver lining. अभी आप नहीं कह सकते हैं कि overnight चीज़ें बदल जाएंगी. जो हम 85 के केस से हमने देखा था और जो predicament थी औरतों की तभी, it has gotten slightly better. And it inshallah will get better as time goes by. हक कैसी है? I think it's a concept-driven film. Like she said, it is something which drives the thought process, जहाँ पे pro women है, और इस फिल्म में एक male bias को भी दिखाया जाता है. It sheds light on that. हाँ, हमने एक लैंडमार्क केस को एक एग्जाम्पल पर लिया है वो उस चीज़ को. इट इज़ फॉर द यंगर जनरेशंस बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम शाहबानो और ऐसी औरतों का स्ट्रगल फिर से पब्लिक डोमेन में लेके आएँ. What is it that you want people to be saying when they leave the theatre after seeing Haq? If I go by my instinct, and I don't think for a while they'll be able to say anything. मैं बहुत ज़्यादा नहीं मुझे बोलना चाहिए अपनी फिल्म के रिलीज़ के पहले, पर मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ही एक लेवल हेडेड इंसान हूँ जो अपनी ही फिल्मों को, स्पेशली अगर मैं किसी और को क्रिटिसाइज़ कर सकती, अगर मैं करती हूँ तो पहले मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपना काम पहले देखूँ, और मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली देखती हूँ, मैं मानती हूँ हक एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, एक बहुत बैलेंस्ड फिल्म बनी है, इन द सेंस एक फिल्म है, ऐसा नहीं है इट्स देयर टू
कॉन्वर्सेशंस, डिबेट्स, डिस्कशन उसका बाय प्रोडक्ट है. पहले ये एक फिल्म है. It left me speechless, and I'd like to believe that I watch films as an audience. That time I'm not watching it as an actor. When I read a script, पढ़ती भी मैं as an audience हूँ पहले. वो actor nuances, वो चीज़ें सब बाद में आती हैं. पहले as an audience को सोचती हूँ कि can Yami the artist and Yami the audience meet together? And I feel so far, at least in the last 4-5 years, I have struck a chord with my audience. I still don't know what they like. I still don't know what they want. I still don't know result. Come on, hoga. you're fishing now. But I believe they have not let down a good film. What can I say? I can only wish you all the very best. Thank you. And I do hope when people leave the hall after seeing the film, as you said, they're as speechless as you expect them to be. Thank you very much, Imran Hashmi, and thank you, Yami Gautam, for joining me Thank you, Namita. on Frankly Speaking. Thank you so much. Thank you. Absolutely. Pleasure talking.